السلام علیکم، کیسے ہیں آپ لوگ؟ دیکھ لیں پھر آپ لوگوں نے ٹارگٹ مکمل نہیں کیا نا، 800 سبسکرائبرز نہیں کیے۔ آخر آپ لوگ چاہتے کیا ہیں؟ نہ وہ ریڈ بھی کرتے ہیں، پھر سبسکرائب بھی نہیں کرنا، لائکس بھی نہیں کرتے، کومنٹس بھی نہیں کرتے۔ میں آج لاسٹ ٹائم آپ لوگوں کو ویڈیو دے رہی ہوں، اگر اس کے بعد بھی آپ لوگوں نے رسپانس نہ دیا تو میں کل ایپیسوڈ نہیں دوں گی۔ چلتے ہیں ناول کی طرف۔ حیات تشنگی بائے حورین فاطمہ، قسط نمبر 5۔ بغیر اجازت کاپی پیسٹ کرنا منع ہے۔ ارید شاہ کی آنکھ کھلی تو کمرے میں ظاہرہ اور اس کے علاوہ اور کوئی نہیں تھا، مطلب جاسم اٹھ چکا تھا اور سب اپنے اپنے کمروں میں جا چکے تھے، وہی اکیلا سوتے رہ گیا تھا۔ اس نے ناگواری سے بیڈ پر لیٹے ظاہرہ کے وجود کی طرف دیکھا اور پھر اٹھ کر جانے لگا جب اس کے باہر کو جاتے قدم ظاہرہ کی آواز نے روکے۔ ارید لالا کی ہمت کیسے ہوئی مجھے رونے والی مشین کہنے کی؟ وہ خود کیا ہے؟ غصے کی مشین، ہر وقت غصہ کرتے رہتے ہیں لوگ، سر پر بیوی کو سوار رکھتے ہیں اور انہوں نے غصے کو سوار رکھا ہوا ہے۔ میرے خیال میں صحیح کرتے ہیں جو غصے کو ہی سر پر سوار رکھتے ہیں، ورنہ جتنا غصہ ارید لالا کرتے ہیں انہیں اپنی بیٹی کون دے؟ مجھے تو لگتا ہے ساری زندگی ارید لالا عرف نک چرا، اکڑو، خروس، باگر بلا کموارہ ہی رہ جائے گا۔ اس کی بڑبڑاہٹ سنتے ارید شاہ کا پارا ہائی ہوا تھا، اس لیے آگے بڑھ کر سائڈ ٹیبل پر پڑا پانی کا جگ پورے کا پورا اٹھا کر اس کے اوپر انڈیل ڈالا، جس سے وہ ہڑبڑا کر اٹھی۔ جاسم لالا کدھر گئے؟ ان کی طبیعت تو ٹھیک ہے؟ وہ اٹھ کر پریشانی سے اپنے لالا کے بارے میں پوچھنے لگی۔ سب ٹھیک ہے، بس تمہارا دماغ ٹھیک نہیں ہے، جسے میں بہت جلد ٹھیک کرنے والا ہوں۔ وہ جگ سائڈ ٹیبل پر پٹکنے والے انداز میں رکھتا کمرے سے نکل گیا۔ پیچھے سے وہ اس کے لفظوں کا مطلب سمجھنے کی کوشش کرنے لگی۔ ہیں یہ باگر بلا اتنی صبح صبح غصے میں کیوں ہے؟ میں نے تو کچھ کہا بھی نہیں ہے۔ وہ کافی دیر ارید شاہ کے غصہ کرنے کی وجہ سمجھنے کی کوشش کرتی رہی، لیکن پھر کچھ بھی سمجھ نہ آنے پر اٹھ کر فریش ہونے اپنے کمرے میں چل دی۔ پانی کا پورا جگ اس پر انڈیل کر ارید شاہ نے اس کے کپڑے پہننے کے لائق چھوڑے ہی نہیں تھے، اس لیے اسے دوبارہ سے چینج کرنے تھے۔ پورے شاہ ولا کی عادت تھی سب ایک ساتھ بیٹھ کر ہی کھانا کھاتے تھے، لیکن جاسم شاہ کی طبیعت خرابی کی وجہ سے کوئی بھی رات کو ٹھیک سے نہیں سو پایا تھا۔ سب کو اٹھنے میں دیری ہو گئی تھی، اس لیے ساتھ کھانا نہ کھانے کی وجہ سے سب چائے پی کر اپنے اپنے کاموں پر جا چکے تھے۔ گھر پر صرف ارید شاہ، اضواء اور ظاہرہ ہی موجود تھے جو لیٹ اٹھے تھے۔ وہ کمرے میں بیٹھی بور ہو رہی تھی تو اٹھ کر نیچے آ گئی۔ نیچے بھی خالی حال اس کا منہ چرا رہا تھا۔ بی جان شاید کسی رشتہ دار کے ہاں گئی ہوئی تھیں اور گھر کی خواتین کچن میں تھیں، اضواء بھی وہیں پر ان کے ساتھ ہی تھی۔ صبح سب کے ٹھیک سے ناشتہ نہ کرنے کی وجہ سے لنچ آج تھوڑا جلدی بن رہا تھا۔ ارے میرا بچہ اٹھ گیا، کچھ چاہیے تھا کیا؟ پھپھو جان نے ظاہرہ کو کچن میں داخل ہوتا دیکھ محبت سے پوچھا۔ ہاں جی چاہیے نا، ایک ادر شوہر۔ وہ دانتوں تلے لب دبائے پاس کھڑی نرمین بیگم کے دوپٹے کا پلو منہ میں دبائے شرمانے کی ایکٹنگ
करते हुए बताने लगी। उसकी एक्टिंग पर सब मुस्कुरा दी। जबकि किचन के दरवाजे पर खड़े अरीर शाह ने नागवारी से ये मंज़र देखा। अरे लाला, आप किचन में? आपको कुछ चाहिए था तो मुझे बता देते। अजवा ने किचन के दरवाजे पर खड़े अरीर शाह से पूछा तो ज़ाहिरा सटपटा के सीधी हुई। उसे ढेरों शर्मिंदगी ने आन घेरा। ना जाने अरीर शाह कब से वहाँ खड़ा होगा और उसके बारे में क्या सोच रहा होगा। उफ ज़ाहिरा, तू भी कितनी पागल है। बोलने से पहले आगे पीछे तो देख लिया कर। उसने अपना माथा पीटा। जी, वो मुझे एक कप चाय चाहिए थी। सर में थोड़ा दर्द हो रहा था। ठीक है लाला, आप कमरे में जाएं। और ज़ाहिरा, तुम अरीद लाला के लिए चाय बना दो। हम सब तो कुछ ना कुछ कर रहे हैं, बिज़ी हैं। उसे जाने से पहले अपने पीछे ये अल्फाज सुनाई दिए थे। आयमा बेगम उसे चाय बनाने का बोल रही थी। ज़ाहिरा, तुम एक काम करो, ये शेल्फ साफ़ करो। मेरी फ्राइज़ बन गई हैं। लाला के लिए चाय मैं बना देती हूँ। ये लो ज़ाहिरा, चाय रेडी है। जाओ, तुम जाकर ज़रा ये लाला को दे आओ। मैं ज़रा ये बर्तन धो दूँ। थोड़ी देर बाद जब चाय रेडी हो गई तो उसने चाय को कप में अंडेलते मज़े से चेयर पर बैठी नूडल्स से इंसाफ करती ज़ाहिरा से कहा, जिसने अजवा की बात सुनते गंदा सा मुँह बनाया। इज़ू यार, पहले बर्तन धो लो फिर दे आना। तुम्हारे लाला कौन सा कहीं भागे जा रहे हैं? या फिर एक काम करो, पहले अपने लाला को चाय दे आओ और वापस आकर बर्तन धो लेना। थोड़ी देर पहले वो जो गोहर अफसानियाँ कर चुकी थी, उसके बाद वो अरीर शाह के सामने जाने का कोई इरादा नहीं रखती थी। ज़ाहिरा, बर्तन या फिर चाय? बात ना बनते देख अजवा ने उसे ब्लैकमेल किया। तुम और तुम्हारे लाला दुनिया में सबको ब्लैकमेल करने के लिए पैदा हुए हो क्या? अजवा की धमकी काफ़ी कारआमद साबित हुई थी, इसलिए वो उठकर चाय का कप थाम चुकी थी। उसकी बात पर अजवा मुस्कुरा दी। बर्तन धोते हुए तो उसे मौत पड़ती थी। उसका कहना था, बंदे जितने चाहे मुझसे धुलवा लो, लेकिन ये बर्तन वगैरह मुझसे नहीं धुलते। बड़ी मामा, देख लें अपनी बेटी को, हर वक्त ब्लैकमेल करती रहती है। अब मुझे शेर की खुचार में भेज रही है। अगर मुर्दा वापस आई तो अजवा को हरगिज़ मेरी कुलखानी की बिरयानी खाने ना दीजिएगा और मेरे लाला का बहुत सारा ख्याल रखिएगा। वो शरारत से कहती ये जा वो जा हो गई और पीछे सबको अफसुर्दा कर गई। पागल है ये लड़की। बोलने से पहले बिल्कुल भी नहीं सोचती क्या बोल रही है। अजवा उसकी थोड़ी देर पहले की गई बातों को याद करती सर झटक कर एक बार फिर से अपने काम में मसरूफ़ हो गई। कमरे के बाहर जाते उसने गहरा सांस लिया और हल्के से दरवाज़ा नॉक किया। अब चाय लेकर आ ही गई थी तो उस ड्रैगन तक पहुंचानी भी थी। कमीन, इजाज़त मिलते ही वो आहिस्ता से कमरे का दरवाज़ा खोलती अंदर दाखिल हो गई। अरीर शाह, जो कब से सिगरेट सुलगाए पी रहा था, उसका धुआं ज़ाहिरा के नथनों से टकराया तो उसने गंदा सा मुँह बनाया। हर वक्त अरीद लाला ये जहर पीते रहते हैं, इसलिए तो जहर उगलते हैं, वरना मैं भी सोचूं ये इतना जहर लाते कहाँ से हैं। ज़ाहिरा ने दिल में सोचा, उसके सामने बोलने की हिम्मत तो थी नहीं। अरीद लाला, आपकी चाय। अरीद को लगा था अजवा होगी, लेकिन ज़ाहिरा की आवाज़ पर वो झट से सीधा हुआ। दो और जाओ। काफ़ी नागवारी से कहा गया था। वो शख्स ना जाने क्यों उसे हर वक्त
वक्त ही जलील करता रहता था। वो गुस्से से जाने के लिए पलटी, लेकिन अरीद शाह की गुस्से से भरी आवाज़ सुनकर उसके कदम वहीं पर थम गए। ये कैसी चाय बनाई है जिसमें शुगर का नाम तक नहीं है? ऐसी चाय कौन बनाता है भला? वो जिसके सर में सुबह से ही दर्द था, चाय की शदीद तलब महसूस हो रही थी। पसंद की चाय ना मिलने पर उसका गुस्सा सवानेज़े पर पहुंच चुका था। ऊट पटांग हरकतों और बातों से टाइम मिले तभी कुछ ढंग का काम करो। अरीद शाह ने मुसलसल उसे वहीं खड़े टोंट किया। तुम ज़िंदगी में कभी कुछ नहीं कर सकती, कभी आगे नहीं बढ़ सकती। तुम्हारी यही हरकतें एक न एक दिन सबको दुनिया वालों के सामने शर्मिंदा करवाएंगी। तुम्हें सिवाय ज़बान दराज़ी करने के और फजूल बोलने के कुछ नहीं आता। सब ज़िंदगी में आगे बढ़ गए हैं और तुम वहीं की वहीं हो। अपनी इन फजूल हरकतों की वजह से ही तो तुमने मैट्रिक करके पढ़ाई छोड़ दी थी ना। हम सब कहाँ के कहाँ पहुँच गए हैं और तुम अभी तक वहीं पर पड़ी हो। अरीद शाह ने आज अपने दिल की सारी भड़ास निकाल डाली। यहीं पर ज़ायरा की भी बस हुई और उसका गुस्सा सवानेज़े पर पहुंच गया। अरीद लाला, आपको तो पता ही है कितनी महंगाई हो गई है। चीनी की कीमतें तो आसमान को छू रही हैं। गरीबों को 2 पल की रोटी मिलना दोभर है। ऐसे में जैसे चाय मिल गई है उसे पीकर अल्लाह का शुक्र अदा करें और चाय बनाने वाली को दुआएं दें। नहीं तो ऐसा करें जैसे जानू से ऑनलाइन सर दबवा लेते हैं, वैसे ही ऑनलाइन जानू की उंगली चाय में डबवा लें। चाय मीठी हो जाएगी। अपनी बात के इख्तिताम पर उसने दांतों तले लब दबाए, जबकि अरीद शाह जो कब से गुस्सा जब्त किए खड़ा था, जानू लफ्ज़ पर उसकी बस हुई थी। वो ज़ायरा की मजाक में कही गई बात को तंज समझ रहा था। उसने कुछ भी सोचे समझे बगैर ज़ायरा की उंगलियां पकड़कर चाय में डुबो डाली और फिर झटके से बाहर निकालकर उसे पीछे की तरफ धक्का दिया, जिससे वो लड़खड़ाते और सिसकते हुए ज़मीन पर जा गिरी। आंसू उसकी आंखों से बलबल बहने लगे। ये लो चाय, मीठी हो गई होगी, अब तुम ही पी लो। इसने चाय का कप भी पूरी कुव्वत से ज़मीन पर दे मारा। उसने अपनी भूरी कांच सी नम आंखें उठाए शिकवा कुना नज़रों से अरीद शाह की तरफ देखा और फिर अपने लेफ्ट हैंड को दूसरे हाथ से पकड़कर उठते हुए उसके कमरे से निकलती चली गई। उसके जाने के बाद जैसे ही अरीद शाह के सामने उसकी भूरी कांच से शिकवा करती आंखें लहराईं और उसका जला हुआ हाथ आया तो उसे अपनी गलती का एहसास हुआ। अज़वा जो अभी किचन का काम समेटे अरीद शाह के कमरे की तरफ ही जा रही थी, ज़ायरा को अरीद शाह के कमरे से निकलकर भागते हुए और रोते हुए देख चुकी थी। अज़वा उसके कमरे की तरफ जाती इससे पहले ही ज़ायरा खटाक से अपने कमरे का दरवाज़ा बंद कर चुकी थी। वो ज़ायरा से बाद में बात करने का इरादा करती अपने लाला के कमरे की जानिब चल दी ताकि उनसे मामला जान सके। लाला, क्या हुआ है ज़ायरा को? वो रो क्यों रही थी और आपके कमरे से भागते हुए क्यों गई है? आपने तो उसे कुछ नहीं कहा। अज़वा ने दरवाज़ा नॉक करते कमरे में दाखिल होते एक साथ कई सवाल पूछ डाले। अरीद शाह जो उसकी जानिब पीठ किए खड़ा था, गुस्से के इश्तिआल को कम करने की कोशिश कर रहा था। उसकी आवाज़ सुनता खुद को कंपोज करते पलटा। कुछ नहीं लिटिल डॉल, आपको तो
पता ही है, वो तो शुरू से ही रोने की मशीन है। छोटी छोटी बातों पर रोने बैठ जाती है। अभी भी चाय अच्छी ना बनाने पर मैंने उसे थोड़ा सा डांटा तो रोने लग गई। थोड़ा सा डांटने पर अदील शाह के अंदर से आवाज़ आई, अदील शाह, क्या वाकई तुमने उस लड़की को कम डांटा है? तुम तो एक लड़की की उंगलियां जलाकर कह रहे हो बस थोड़ा सा डांटा है, लेकिन फिर ये सोचते हुए कि गलती भी तो उसी की थी, कितना फजूल बोले जा रही थी। होंठों पर हल्की सी मुस्कुराहट सजाए अजवा को बताने लगा, लेकिन लाला, चाय ज़ायरा ने नहीं, मैंने बनाई थी। अजवा के बताने पर उसे झटका लगा। वाट, तुमने बनाई थी? लेकिन मामा तो ज़ायरा को बनाने का कह रही थी। लाला, मामा ने उसे चाय बनाने का बोला ज़रूर था, लेकिन बाद में मैं उसे दूसरा काम सौंपते मैं खुद बनाने लग गई थी। मुझे लगा था मैं अपने लाला के लिए चाय बनाऊंगी तो वो खुश हो जाएंगे। अभी भी मैं आपके कमरे में यही पूछने आ रही थी, लेकिन जिस तरह से आपने ज़ायरा को डांटा है, मुझे नहीं लगता चाय अच्छी बनी होगी। नहीं लिटिल डॉल, चाय तो अच्छी बनी थी। वो अपनी बहन का दिल तोड़ना नहीं चाहता था, इसलिए उसकी तारीफ़ कर डाली, लेकिन अपने गुस्से की वजह से वो एक मासूम का दिल तोड़ने के साथ साथ उसकी उंगलियां भी जला चुका था। ना जाने उसे कितना दर्द हुआ होगा। लाला, वो तो बहुत अच्छी चाय बनाती है। आपको इस तरह से उसे डांटना नहीं चाहिए था। वो अपने भाई से शिकवा करती, पीछे से उसे शर्मिंदगियों के समंदर में छोड़ती कमरे से निकल गई। उफ फरीद शाह, तुमने गुस्से में ये क्या कर दिया? तुम्हें तो पता ही है दादा साईं और जासिम में उसकी जान बसती है। अगर उसने उन दोनों को बता दिया या दोनों में से किसी एक को भी बता दिया तो घर में उसकी जो इंसल्ट होगी वो अलग, ऊपर से सब उससे नाराज़ हो जाते। अभी भी उसे सब की नाराज़गी की फ़िक्र थी, सिवाय ज़ायरा के, जो बेड पर औंधे मुँह लेटी बिलक बिलक कर रो रही थी। अजवा कई दफ़ा उसके कमरे का दरवाज़ा बजा कर जा चुकी थी, लेकिन वो खोलने का नाम नहीं ले रही थी। वो घर में भी किसी को नहीं बता सकती थी, वरना बहुत बड़ा बवाल हो जाना था। अदील शाह को ना जाने क्यों बचपन से ही ज़ायरा से ख़ास किस्म का ख़ार था, जिसके चलते वो बचपन से अब तक उसे ज़लील करते ही आया था। अगर आप लोगों का रिस्पॉन्स यही रहा ना, तो मैंने हफ्ते में एक दिन किस्त दिया कर